अच्छा, सो लिसन, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। Now the first thing is organic chemistry is obviously chemistry of organic compounds. What are organic compounds? They are all कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन कंपाउंड्स का मतलब है कि कार्बन कंपाउंड्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कार्बन कंपाउंड्स व्हिच आर कार्बन कंपाउंड्स, ये आपके ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे ऑल मेड आउट ऑफ कार्बन, ठीक है, मोस्टली कार्बन, ठीक है, दैट्स द बैकबोन। फिर बेस्ड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, एवरीथिंग, ठीक है। और उसमें से based on living organisms when they die, they turn into fossil fuels, ठीक है, after compression from the earth's crust, जितना भी organic matter होता है, that turns into fossil fuels, ठीक है। So organic chemistry is जितनी भी sciences हैं, all related to medicine, ठीक है, all related to plants and animals, that's all organic chemistry, and anything that's related to petrochemicals, ठीक है, और petrochemical products वगैरह, petroleum वगैरह, that is all ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये सारा। अच्छा, नेक्स्ट इज so why carbon? The first thing is, why are molecules made out of carbon? Most of the molecules, complex molecules, क्योंकि carbon makes four very strong bonds. So if you want to make a complex structure, so it's got that the element is making a lot of bonds, ठीक है। That helps. एक एटम है ना जो एक ही बॉन्ड बना रहा है, उससे उसका कोई फायदा नहीं है, यू कांट मेक अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आउट ऑफ इट। But if an element is making four very strong bonds, you can make a complex structure out of it. ठीक है, जैसा cells, membranes, muscles, ठीक है, all of this stuff, plants, leaves, etc. So they make four very strong bonds, group four में. So that's kind of a good thing. अच्छा, there are other elements as well that are part of organic chemistry. तो इसमें याद रख लो कि first thing is group seven का कोई भी element है. You've got fluorine, chlorine, bromine, iodine. They usually make one bond. अच्छा, फिर आपके पास group six है. Any elements, the common ones are oxygen and sulfur. They always make, or most of the time, they make two bonds. Group five, nitrogen and phosphorus. They normally make three bonds. और फिर आखिरी वाला ग्रुप फोर है, ठीक है, दैट्स कार्बन एंड सिलिकॉन, एंड दे नॉर्मली मेक फोर बॉन्ड्स। अच्छा, रिमेंबर, जो बड़े एटम्स होते हैं ना periodic टेबल में, बाकी एलिमेंट्स का कोई फायदा नहीं है, ना तो वो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर नॉट इवन कॉमन, ठीक है। जो टॉप वाले एलिमेंट्स होते हैं टॉप रोज में, आई मीन देयर जस्ट अ फ्यू एलिमेंट्स दैट आर द कॉमन वंस। तो ज्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट जस्ट रिवॉल्व्स अराउंड दीज एटम्स। अब द फर्स्ट थिंग इज, यू शुड नो के, क्योंकि रिमेंबर ह्यूमन बॉडी के अंदर ना देयर आर लाइक इन्फिनिट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक सेल के अंदर ना देयर लाइक सो मेनी स्ट्रक्चर्स, सो मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो इनको आप रैंडमली या जिस मर्जी तरीके से कनेक्ट करो, दैट विल प्रॉब्ली exist in nature. So if I connect carbon with other carbon atoms and then I connect an oxygen with it, ठीक है, then I add maybe a nitrogen atom to it, ठीक है, फिर एक और कार्बन है, फिर एक कार्बन ऊपर जा रहा है, one carbon is bonded in this direction, it's forming a double bond, ठीक है। So you can connect these atoms and make very very complex structures. बीच में कार्बन होगा तो it's going to be a complex structure because carbon would be making a lot of bonds in lots of different directions. अच्छा, इसमें H makes one bond. It's not in any group, तो it normally makes one bond. ये normally ना टर्मिनल एटम होता है, क्योंकि ये जब बॉन्ड करता है ना, फिर आगे मजीद फर्दर बॉन्डिंग इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वाई इज इट नॉट पॉसिबल? क्योंकि वो दूसरा बॉन्ड तो बना नहीं सकता,
So for example, I'm going to start with the first carbon. मुझे था कि right now it's making how many bonds? One. तो इसके अंदर वो क्या कह रहा है? It should be making four bonds, right? So I'm going to attach. अच्छा, I'm going to attach three H atoms to it. Is that clear? जी सर। यस सर। अब इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट होगी। अब मुझे जरा बारी बारी बताओ। अब मैं H के एटम्स जोड़ रहा हूँ, ठीक है? मैं H को ना वैसे ही मैंने पिक किया हुआ है। Terminal atoms, remember, are mostly H. It's not necessary that it's H. H इसलिए क्योंकि H is one of the most abundant elements in the universe. कहीं भी जाओगे ना हाइड्रोजन होगा, जैसा वाटर है उसमें भी H है. Everything has H in it. ठीक है? H is 92% of the universe is just H atoms. ठीक है? तो मैं इसलिए ना H लगाई जा रहा हूँ हर जगह. But it's not necessary. You can add another atom or any other element. इस N का मुझे बताओ कि इसका कितने बॉन्ड्स होने चाहिए? सर 3 bonds। अभी कितने बना रहा है? वन। 1 bond। So it should be making two more bonds with. So I'm going to attach two H's with it, right? Is that clear? यस। जी अच्छा, इस कार्बन के साथ कितने एच लगाऊं मैं? सर। वन। एक। हाँ, उसके तीन तो बना रहा है तो आई शुड हैव वन एच, ठीक है? फिर नेक्स्ट कार्बन कितने एच होने चाहिए? वन। ठीक है, सो आई शुड हैव वन एच, राइट? ये ऑक्सीजन के साथ कितने एच होने चाहिए? टू। सर 1। नहीं, इट शुड बी सर मेकिंग 1। टू टू बॉन्ड्स, लेकिन एच एक ही होगा ना, ओ यस। क्योंकि एक बॉन्ड तो वो पहले ही बना रहा है। अच्छा, कार्बन इसका कितने एच होने चाहिए? इस कार्बन के साथ जीरो। जीरो। जीरो, क्योंकि इट्स ऑलरेडी मेकिंग फोर बॉन्ड्स। यस। नेक्स्ट नेक्स्ट कार्बन, हाउ मेनी एचेस? टू। सर तो टू एचेस। और जो टॉप पे कार्बन उसका कितने एचेस होंगे? 3। तो थ्री एचेस। अब ये पहला काम है, ठीक है? यू शुड नो कि बाय जस्ट लुकिंग एट द मॉलिक्यूल, क्योंकि रिमेंबर द इन्फिनिट पॉसिबल मॉलिक्यूल्स, जो मर्जी उनको रैंडमली अटैच कर दो, ठीक है? तो देयर आर मेनी मेनी डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पॉसिबल. सो द फर्स्ट थिंग इज कि you need to draw the correct structure. Everyone should be making the right number of bonds. ठीक है? एवरी कोई भी स्ट्रक्चर आपके सामने इस तरह का आएगा ना, एंड दिस इज नोन एज अ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. अच्छा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है ना, that is any formula that shows structure of the molecule. That shows arrangement. Is that clear? जी सर। So any formula that shows arrangement. तो अच्छा, वो that's a structural formula. So this is showing an arrangement, and this is specifically a displayed formula. Structural formula में भी कुछ types होती हैं. So this is known as a displayed formula. Displayed formula का मतलब है you show every single bond is shown. So you're showing every atom, every bond, everything is shown. इसकी एक और वर्जन होती है, हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? तो राइट नाउ वी जस्ट डीलिंग विद स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. अच्छा, फिर इसमें यह कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं. लाइक इफ दे गोइंग टू आस्क यू फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डज नॉट टेल यू द स्ट्रक्चर. व्हाट इट जस्ट डज इज कि वो टोटल एटम्स बता देता है कितने कार्बन है. इट्स गॉट फाइव कार्बन्स एंड इट्स गॉट हाउ मेनी एचेस? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह. तो इट्स गॉट 13 एचेस, 13 एचेस हैं. और एक एन नजर आ रहा है, एक ही एन है ना, और एक वो है, ठीक है? अच्छा, molecular formula is not giving you any information about how the arrangement is. बस total number of atoms बताता है, ठीक है?
तो ये थोड़ा क्वेश्चन में देख लेना कि इज ही लुकिंग फॉर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और इज ही लुकिंग फॉर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी को पहले प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर्स। ये मैं रैंडमली ना आई एम ड्राइंग, इनको ना रैंडमली अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। चलो एक और कर लेते हैं। एक एन भी लगा देते हैं। अब मुझे बारी बारी बताओ कि इसको सही करना है। एचेस कुछ और लगा सकते हैं, फिर से मैं कह रहा हूँ, लेकिन आई एम जस्ट पिकिंग एच। तो अब इसमें बताओ कि फर्स्ट वाले कार्बन के साथ कितने एच होने चाहिए। सर 3। ठीक है, सो दिस गोना बी 3 एचेस, राइट। वो सेकंड वाले के साथ कितने होने चाहिए। One, सर 1। ठीक है, 1। अच्छा, फिर थर्ड वाले के साथ कितने होने चाहिए। 0, 0। नीचे वाले के साथ कितने होने चाहिए। 3, ठीक है, 3 एचेस। और ये एंड वाला जो है, 1। 1, 1, इस इसके साथ 1 एच, ठीक है। ये इस पे आ जाओ, इस पे मुझे ऊपर से टॉप से बता दो कि टॉप वाले पे कितने एच होने चाहिए। 2, ठीक है, इट शुड हैव 2 एचेस। और फिर एक सेकेंड, बाकी बताओ साइड वाली ऑक्सीजन वाले के साथ कितने होने चाहिए। C, 0। 0, ठीक है, उसके साथ 0 होने चाहिए। ऑक्सीजन के साथ कितने होने चाहिए। 0, ठीक है, इस कार्बन के साथ कितने होने चाहिए। 2, ठीक है, इट शुड हैव 2 एचेस। नीचे वाले कार्बन के साथ 0। 0, एन के साथ। 1, 1। अच्छा, इस कार्बन के साथ 1, और इस कार्बन के साथ। 1, 1, ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, दिस वन, कि इस कार्बन के साथ क्या एचेस, कितने एचेस होने चाहिए। 3। 3, इस कार्बन के साथ कितने एचेस होने चाहिए। 3। सर नीचे वाले हाँ, और उससे ऊपर वाले 1। 1 एच। नेक्स्ट वाला कार्बन के साथ कितने एचेस होने चाहिए। 0। और एन के साथ। 0, 0। ठीक है, और अगला वाला। 3, अच्छा, इससे नीचे वाला। 3। 3, और ऊपर वाला कार्बन। 1। 1, ठीक है, नेक्स्ट वाला उसके साथ कितने होंगे। 1, एन के साथ कितने होंगे। 2, ठीक है, दैट्स गोइंग टू हैव 2 एचेस। और फिर वो ओ के साथ कितने होंगे, जो अगला ओ है। 0। 0, और कार्बन के साथ एक एच होगा, राइट। 1, ठीक है, तो ये पहला काम है कि ये क्या प्रैक्टिस करते रहेंगे, विल डू लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अच्छा, विल डू अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगला ये कि अच्छा, अगला पार्ट ये है
जैसे रिमेम्बर, ये सारी प्रैक्टिस होती रहेगी। दी अदर थिंग इज के कंडेंस में हम बाद में आते हैं। सो दे आर इन्फिनिट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, राइट? सो दे नीड टू बी क्लासिफाइड। मैंने मतलब आप कुछ भी रैंडमली बनाओगे ना, दैट्स प्रॉब्ली गोइंग टू बी एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है? और वो कहीं ना कहीं नेचर में, आपकी बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर, समवेयर इट्स गोइंग टू एग्जिस्ट, ठीक है? सो दे इन्फिनिट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड दे नीड टू हैव अ क्लासिफिकेशन सिस्टम। जिसना एनिमल किंगडम होता है ना, उसमें प्लांट्स होते, मतलब रेप्टाइल्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, बेस्ड ऑन सर्टेन प्रॉपर्टीज, ठीक है? यू स्टार्ट क्लासिफाइंग देम। फिशेज होती हैं, ठीक है? तो उनका क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे नीड अ क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि वो हैं इतने ज्यादा। दैट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसना वो एनिमल किंगडम होता है ना, दिस इज नोन एज द होमोलोगस सीरीज। तो इट्स अ ग्रुप। आप क्लासिफाई करते हैं ग्रुप में। इट्स अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, और इट्स अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ज्यादा बेहतर है। सो इट्स अ फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनको आप एक ग्रुप में डाल देते हो, ठीक है? हैविंग, तो इस तरह बर्ड्स है ना, बर्ड्स में क्या है, उनके फेदर्स होंगे, दिल फ्लाई, ठीक है? दिल ले एग्स, वो सर्टेन प्रॉपर्टीज, सो यू जस्ट ग्रुप देम टुगेदर एंड यू स्टार्ट कॉलिंग देम अ फैमिली ऑफ बर्ड्स, ठीक है? तो फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी इसी तरह क्लासिफाई होते हैं, बट दे आर क्लासिफाइड नंबर वन बेस्ड ऑन हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि इतने टाइप्स के होते हैं ना, दे ऑल हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। सो इफ दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, तो you will classify them in one family. अच्छा, you're going to classify them in one family having similar chemical properties. अच्छा, फिर they're going to show trends in physical properties. So physical properties can't be exactly the same. मतलब melting point एक तो नहीं हो सकता, लेकिन they'll show trends कि अगर लो बॉइलिंग पॉइंट है तो फिर सारों के लो बॉइलिंग पॉइंट होंगे. So they show trends in physical properties. ठीक है? So the physical properties would show trends. सॉलेबल होंगे तो सारे सॉलेबल होंगे, कुछ ज्यादा होंगे, कुछ कम होंगे, ठीक है? बट दे विल बी सॉलेबल. मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट्स लो होंगे, कुछ के ज्यादा ही लो होंगे, कुछ के थोड़े कम लो होंगे, बट दे विल बी लो मेल्टिंग पॉइंट्स. तो इस तरह के ट्रेंड्स होंगे. अच्छा, थर्ड वन, दे गोइंग टू हैव द सेम जनरल फार्मूला. सो ये हम अभी डिस्कस करते हैं, जब हम पहला करते हैं ना, तो क्या होगा? दे विल हैव द सेम एग्जैक्ट जनरल फार्मूला. और फिर नंबर फोर है कि दे हैव जनरल फार्मूला. एक फार्मूला होता है जिससे आपको ना इसका इसका कंपाउंड का ना नंबर ऑफ एटम्स पता लग जाते हैं. वो अभी हम बाद में करेंगे. अच्छा, देन देयर इज अनदर वन दैट दे हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप. अच्छा, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? इट्स अ स्ट्रक्चर और अ ग्रुप, और अ स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूल दैट डिटरमिन्स द केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है? इज दिस क्लियर? जी सर। Yes. सो दे हैव द सेम एग्जैक्ट functional group. It's a group or structure in the molecule that determines the chemical properties. अच्छा, फिर ये कि सो फॉर एग्जांपल, ये जो मॉलिक्यूल हमने ड्रॉ किए ना,
इस पे द होल थिंग विल नॉट रिएक्ट, उसका ना ये वाला एंड शायद रिएक्ट करे, जैसे वो एक्टिव साइट्स वगैरह नहीं पड़े बायो में, एंजाइम्स वगैरह। सो द एंटायर मॉलिक्यूल माइट नॉट रिएक्ट, अ सर्टेन पोर्शन ऑफ इट माइट रिएक्ट। जैसे हम यहाँ पे ना, ये जो डबल बॉन्ड है दैट्स वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो दैट्स दोज आर फंक्शनल ग्रुप्स के देयर इज अ सर्टेन स्ट्रक्चर इन द मॉलिक्यूल दैट विल, जिसके साथ सारे रिएक्शंस हो रहे होंगे, बाकी मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं कर रहा होगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ है कि फिफ्थ भी हम बाद में देखेंगे। फिफ्थ है इसके सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। अच्छा, दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, ठीक है। वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। तो we're going to start off with the first homologous series। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत दफा आता है कि वो कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ होमोलोगस सीरीज। तो उसके अंदर ना आपने ये सब मेंशन करना है। वैसे दो तीन ही पूछते हैं, तो बस लिख दो कि सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज शो ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड जनरल फॉर्मूला और वो सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, बाकी नेक्स्ट है कि उससे आगे की जो चीज़ है ना वो ये है कि we're going to start with the first one which is alkanes। That's the first homologous series। alkanes जो होते हैं ना, they are known as the first class of compounds है, of organic compounds or family of compounds। alkanes are known as saturated hydrocarbons। इसका एक जनरल फॉर्मूला which is CnH2n+2, but we'll come to that later on। सैचुरेटेड का मतलब है कि एल्केन्स में ना कार्बन और कार्बन के बीच में ना देयर विल बी ऑल सिंगल बॉन्ड्स। और हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है कि देयर विल बी ओनली टू एटम्स, द मॉलिक्यूल ओनली कंटेन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो दैट्स व्हाट एन एल्केन is। So I'm going to draw a couple of alkanes, ठीक है, randomly। तो सारे सिंगल बॉन्ड्स और एच और कार्बन के अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। So we can add in the H's, इसके साथ कितने H's होंगे? That's going to be three H's, right? This one is going to have how many H's? It's also going to have three H's. This one will have one H, and this one will have two H's, or this one will have three H's। ठीक है, क्लियर है? तो जी that's an सर। alkane, that's an alkane। alkane छोटे भी हो सकते हैं, वो साइज में बड़े भी हो सकते हैं। So this is a small alkane with two carbon atoms। Carbon should be making four bonds। तो that's my alkane। इधर ही मैं जनरल फॉर्मूला का डिस्कस कर लेता हूँ। जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, राइट? उसका मतलब है कि n इज द नंबर ऑफ कार्बन आटम्स। इसका मतलब है कार्बन अगर इसमें कितने हैं, फाइव है। सो इफ यू हैव फाइव कार्बन आटम्स तो हाइड्रोजन आटम्स विल बी डबल करके ना +2 कर दो। यानी अगर फाइव कार्बन होंगे 12. तो हाइड्रोजन उसको डबल करो और +2 करो, तो दैट्स गोइंग टू बी 12, ठीक है। वो काउंट भी कर लो, इसके अंदर there's going to be C5H12। तो द जनरल फॉर्मूला हेल्प्स अस इन फिगरिंग आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डायरेक्टली, ठीक है। मतलब आपको गिनना नहीं पड़ता, यू कैन जस्ट फिगर दिस आउट। इसका क्या होगा? C2 है, तो एच को डबल करके टू ऐड करो तो 4+2, राइट? 6। और ऊपर 6 ही है। तो जनरल फॉर्मूला भी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, I'm going to discuss a few types of molecules, ठीक है। ये एक alkane है, so 3 H's with this। इसके साथ 2 H's है और 3 H's।
ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा? C4H डबल करो, 8 8 + 2, राइट? 10। अच्छा, दीज आर नोन एज स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल्स। ये वाला जो है ना, ये पहला वाला ड्रॉ हुआ हुआ है, दैट्स अ ब्रांच्ड मॉलिक्यूल। और कुछ साइक्लिक भी होते हैं, ठीक है। साइक्लिक जो होते हैं ना, दे लुक लाइक दिस के, लाइक इफ आई वांट टू ड्रॉ अ साइक्लिक alkane, तो दैट काइंड ऑफ वो साइकिल में होंगे, और वो एचेस करते जाओ। अच्छा दैट्स अ साइक्लिक alkane। अच्छा, अब इसमें ये कि सो दैट्स अ साइक्लिक alkane, और इसको, अच्छा नाउ द थिंग इज कि साइक्लिक मतलब समझ गए होगे कि इट्स अ साइक्लिक alkane, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर जनरल फॉर्मूला डज नॉट अप्लाई। एक तो साइक्लिक है alkane ही, लेकिन द जनरल फॉर्मूला डज नॉट वर्क फॉर अ साइक्लिक alkane। ये C6H12 है, यानी ये H जो है ना वो डबल है, +2 नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा, एनीवेज द रीजन आई एम हाईलाइटिंग दिस इज कि जो नेमिंग वाला पार्ट है ना, विच वी गोना डू नेक्स्ट, दैट ओनली अप्लाइज टू योर, ये जो हमने ये वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं खाली। अच्छा, हमने ना खाली ये वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं। ये वाले मॉलिक्यूल्स जो है ना, दीज आर स्ट्रेट चेन alkanes। ठीक है, इज दिस क्लियर? Yes, sir. जी तो सर। मतलब पढ़ेंगे हम ये भी, वो बातें सारी इस पे भी अप्लाई होती हैं, ठीक है। क्वेश्चंस विल कम ऑन दिस, दे वुड कम ऑन दिस एज वेल। नेमिंग सर, जो है ना, हाँ जी। सर ये हाइड्रोकार्बन है तो हम बस हाइड्रोजन ही यूज करेंगे, लाइक हाइड्रोजन और कार्बन ही होंगे बस। एल्केन्स में सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होंगे, इट्स अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ओके। और वो भी सैचुरेटेड, यानी सिंगल बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। ओके अच्छा, सर। खैर मैं ये कह रहा था कि इसकी जो सिर्फ और सिर्फ ना आपने इसकी जो नेमिंग है ना, इसकी नेमिंग जो है ना वो हमने पढ़नी है। क्वेश्चन उस पे भी आएगा, क्वेश्चन इस पे भी आएगा, बट दे वोंट आस्क यू टू नेम दीज, ठीक है। दे आस्क यू टू नेम स्ट्रेट चेन alkanes, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रेट चेन alkanes, वो आगे जाके ए लेवल्स में ना यू स्टडी द मोर कॉम्प्लिकेटेड alkanes। इसका नाम क्या है? यू गोना स्टडी दैट इन ए लेवल्स। तो अब अगला जो नेक्स्ट काम कर रहे हैं ना, दैट इज नेमिंग alkanes, ठीक है। तो बेसिक अभी कर लेते हैं, टाइम तो खत्म हो गया। नेमिंग alkanes में कि यू हैव अ काउंटिंग सिस्टम इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो काउंटिंग सिस्टम जो है ना, दैट्स मेथ, एस, prop, then you have ब्यूट। अच्छा, वैसे ब्यूट तक है, लेकिन इट वुड बी हेल्पफुल इफ यू न्यू द अदर वंस एज वेल। पेंट, ये 1 2 3 चल रहा है, ठीक है। पेंट, पेंट के बाद हेक्स, देन हेप्ट, देन ऑक्ट, ठीक है। मेथ का मतलब है इफ द मॉलिक्यूल name starts with meth, that's one carbon atom. If it starts with eth, it's two carbon atoms. If it starts with prop, that's three carbon atoms. Bute hoga, so that means it's got four carbon atoms. Five carbon atoms, hex, six carbon atoms, seven and eight. ठीक है। तो ये याद रखना कि सिर्फ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट
स्ट्रेट चेन्स ओनली। तो और नेम एंड किस तरह होगा, सफिक्स क्या होगा? अच्छा, सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पे ना दिस अप्लाइज, द सफिक्स और द एंडिंग नेम वुड बी इन। सो इफ आई राइट प्रोपेन, prop का क्या मतलब है? prop का मतलब है it's got three carbon atoms, so I'm going to draw three carbon atoms and I'm going to make an alkane that has three carbon atoms. क्लियर है? जी सर। ठीक है, बाकी यस सारों। सर। तो बस that's what propane is। ठीक है, तो चलो ठीक है, ये फिर नेमिंग जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करते हैं कल, ठीक है? ठीक है सर। चले, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। हाफिज।